Hello my dear friends, welcome to the Soundarya Nursing channel. So in this video we are going to study about the concept of illness. So first concept क्या है करके पढ़ेंगे मीन्स व्हाट इज़ द कंसेप्ट राइट. सो कंसेप्ट का अगर हम सिमिलर वर्ड देखेंगे तो कंसेप्ट का सिमिलर वर्ड है थेरी या फिर आइडिया. सो थेरी ऑफ इलनेस या फिर आइडिया ऑफ इलनेस करके बोल सकते हैं. तो नेक्स्ट वर्ड क्या है इलनेस. So illness in simple word what we call means illness is a disease right. So illness का similar word है disease, sickness या फिर infirmity. So these all are word is similar to the illness. So illness क्या है एक disease है means illness is a disease or sickness or period of sickness that affect on the our body or mind that we called as a illness. So concept of illness पढ़ेंगे नीचे. So first introduction. Illness is the inability of an individual's adaptive responses to maintain physical and emotional balances that subsequently results in an impairment of functional abilities. So illness is nothing but it is the inability of an individual adaptive responses. So inability is nothing but unable to do something. राइट. सो अनेबल टू डू समथिंग ऑफ एन इंडिविजुअल एक पर्सन को जो है कुछ काम करने को नहीं आ रहा है टू मेंटेन फिजिकल एंड इमोशनल बैलेंसेस. फिजिकल या फिर इमोशनल बैलेंसेस जो है मेंटेन करने को नहीं आ रहा है इन इन विच कंडीशन मीन्स इन इलनेस and that subsequently results in an impairment of functional abilities. So and what will happen means that subsequently. So subsequently is nothing but afterward. So afterward क्या होता है illness होने के बाद means afterwards results in an impairment of functional abilities. So impairment is nothing but हमारे बॉडी का फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर में जो है कुछ डिसएबिलिटीज आना. So that will happen in illness. So impairment of functional abilities. So this is the introduction of illness. Illness is the inability of an individual's adaptive responses to maintain physical and emotional balances that subsequently results in an impairment of functional abilities. Inability का मतलब है कि अनेबल टू डू समथिंग. कोई भी एक पर्सन है जो कि उनको है कुछ भी काम करने को नहीं आ रहा है एंड रिस्पॉन्सेस एंड अडेप्टिव रिस्पॉन्सेस टू मेंटेन फिजिकली हो या फिर इमोशनली बैलेंस हो वो जो है मेंटेन करने को नहीं आ रहा है आफ्टरवर्ड. ये होने का सॉरी. सो फिजिकल या फिर इमोशनली जो है इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी का फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर जो है इम्पेयर होता है. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस. सो in classification of illness there are mainly two types of classification. So first an acute illness and second is an chronic illness. So there are mainly two types acute and chronic. So first हम पढ़ेंगे an acute illness. So acute का मीनिंग क्या है. So acute word का मीनिंग है short duration right. So acute is nothing but acute meaning is short duration. Illness means it is a disease or sickness affecting on the human body or in the mind. So that is illness. So what is the meaning of acute illness means acute illness is a disruption in functional ability usually characterized by a rapid onset, intense manifestation and relatively short duration. So acute illness is nothing but it is a disruption right. So disruption is nothing but it is a problem. डिसरप्शन का मीनिंग क्या है. डिसरप्शन का वर्ड का मीनिंग प्रॉब्लम राइट. acute illness क्या एक प्रॉब्लम है इन फंक्शनल एबिलिटीज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट इंटेंस मैनिफेस्टेशन एंड रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन. सो रैपिड ऑनसेट इनसेट एंड मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट साइंस एंड साइंस एंड सिम्टम जो है रैपिडली दिखना इन रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन में साइंस और सिम्टम जो है रैपिडली दिखना उसे क्या बोलते हैं हम एक्यूट इलनेस. मीन्स टेक एन एग्जाम्पल. अभी कुछ आपको इलनेस हुआ है
दैट इज शॉर्ट ड्यूरेशन मीन्स 1 आवर और 1 आवर टू 1 डे, 1 आवर या फिर 1 डे तक जो दिखता है साइंस एंड सिम्टम उसे क्या बोलते हैं हम, acute illness, right? Acute illness is nothing but it is a disruption is nothing but it's a problem. Acute illness एक प्रॉब्लम है इन फंक्शनल एबिलिटीज, यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट, इंटेंस मैनिफेस्टेशन एंड रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन। जो भी साइंस एंड सिम्टम दिखता है रैपिडली वो शॉर्ट ड्यूरेशन में देखते हैं, दैट इज acute illness. Acute illness are usually reversible. So reversible, the word itself is called as reverse. Reverse means बार बार आना, right? Acute illness अभी आया है, right? अब इस दिन में आया है, फिर 2 या फिर 3 डेज छोड़कर और आ सकता है। रिवर्सेबल मीन्स अभी एक इलनेस हुआ है तो फिर बाद में भी आ सकता है, दिस इज अ रिवर्सेबल। acute illness आर यूजुअली रिवर्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट है and chronic illness, a chronic illness. So in chronic illness is a disruption in functional ability usually characterized by a gradual insidious onset with lifelong changes that are usually irreversible. So chronic illness is nothing but it is also a disruption, means chronic illness भी एक प्रॉब्लम है इन फंक्शनल एबिलिटीज़, हमारे जो भी बॉडी के फंक्शंस है उसमें जो है एक प्रॉब्लम है क्रोनिक इलनेस, एंड यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय अ ग्रेजुअल। सो ग्रेजुअल इज नथिंग बट स्लोली, ग्रेजुअल इज नथिंग बट द ग्रेजुअल वर्ड मीनिंग इज स्लोली होना, मीन्स स्लोली, एंड इंसीजियस, राइट? Insidious is nothing but any disease that comes on slowly and does not have obvious symptoms at first, right? Insidious क्या है? एक डिसीज है जो कि स्लोली होता है एंड हमें फर्स्ट स्टार्टिंग में जो है साइंस एंड सिम्टम नहीं दिखता है, लाइक ग्रेजुअली स्लोली होता है क्रोनिक इलनेस में। जैसे कि इन एक्यूट इलनेस में क्या देखते हैं कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है एंड साइंस एंड सिम्टम रैपिडली देखते हैं, मीन जल्दी देखते हैं, दैट इज एक्यूट इलनेस, फास्ट देखते हैं उसमें। बट क्रोनिक में क्या होता है कि ग्रेजुअली जो भी साइंस एंड सिम्टम रहता है ग्रेजुअली मीन स्लोली आता है, एंड इंसीजियस का मतलब ये है कि जब कौन सा भी एक डिसीज़ आता है तब जो है स्लोली साइंस एंड सिम्टम आता है, एंड फर्स्ट में जो है हमें साइंस एंड सिम्टम नहीं पता चलता, द पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ इट डेवलपिंग, पर्सन को पता ही नहीं रहता है कि कुछ डिसीज हुआ है, मीन्स क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म पूरा, फर्स्ट में स्टार्टिंग में हमें नहीं पता चलता है कि कौन सा डिसीज है, राइट? सो दैट इज insidious onset with lifelong changes that are usually irreversible। मतलब क्रोनिक इलनेस क्या एक लाइफ लॉन्ग है, राइट? कौन सा एक डिसीज आया तो फुल लाइफ पूरा लाइफ लॉन्ग जाएगा, ग्रेजुअली मीन स्लोली जाएगा पूरा, एंड यूजुअली इरिवर्सिबल, राइट? इरिवर्सिबल मतलब रिपीट नहीं आता है, एक बार अगर क्रोनिक एक डिसीज हुआ तो लाइफ लॉन्ग पूरा इवन डेथ तक जो है वो डिसीज जो है क्यूर नहीं होता है, सो दैट इज अ इरिवर्सिबल। इन acute illness what we study means acute illness is a reversible, राइट? acute illness क्या है? रिवर्सेबल है। acute illness में अभी आया है कुछ इलनेस, फिर क्यूर होगा, फिर बाद में एक वीक छोड़कर आएगा या फिर मंथ छोड़कर आएगा, दैट इज रिवर्सेबल, दैट इज acute illness। बट इन क्रोनिक इलनेसेस, क्रोनिक इलनेस क्या है? क्रोनिक का मीनिंग मैंने बताया, राइट? क्रोनिक क्या है? एक लॉन्ग टर्म है, पूरा लाइफ लॉन्ग है, राइट? दैट इज अ इरिवर्सेबल। सो दिस इज अ introduction of chronic illness. Chronic illness is nothing but is a disruption in functional ability usually characterized by a gradual insidious onset with lifelong changes that are usually irreversible, and chronic illness lasts a long time frequently throughout the individual's life। So chronic illness क्या है? थ्रू आउट दी लाइफ लॉन्ग मीन्स अगर कुछ भी अगर डिसीज आया है तो जल्दी ही जो है 1 मंथ या फिर 2 मंथ में जो है क्यूर नहीं होता है, सो दैट इज क्रोनिक इलनेस मीन्स लाइफ लॉन्ग पूरा,
लाइफ लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं हम? क्रोनिक इलनेस। Thank you for watching. If you have something doubt means please text in the comment box, and thank you.